रावी किनारे बसने वाले ये लोग बुनियादी सहूलियात जैसे तालीम, रोजगार, सेहत, खुराक और सफाई जैसी सहूलतों से अभी तक महरूम हैं। नवे पाकिस्तान के हालात टाइट नजर आ रहे, ना आटा लभदा पे, ना चीनी लभदी पी, ना गैस लभदा पे, गैस मंगण भी चाहिए तो आंदे ने बेसी थानू की दईए। हर शय खान पीन वाली महंगी, गंदा पानी है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, बच्चों की तलीम नहीं है, जे कपड़ा मिलता है तो फिर रोटी नहीं मिलती, जो रोटी होवे तो कपड़ा नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, 73 सालों से हुकूमत ने रोटी, कपड़ा या मकान का नारा लगाया और आवाम का दिल लुभाया, मगर रावी किनारे झोंपड़ियों में बसने वाले लोगों को ये नारा कभी रास ना आया। आज हम आपको दिखाएंगे कि रावी किनारे बसने वाले ये लोग बुनियादी सहूलियात जैसे तालीम, रोजगार, सेहत, खुराक और सफाई जैसी सहूलतों से अभी तक महरूम हैं। शदीद सर्दियों में यहाँ पर ना तो प्रॉपर कोई रिहाइश का इंतज़ाम है, ये छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं जो जरा सी आंधी आए तो उड़ जाती हैं। इनके आसपास मौजूद जो नलके हैं उनमें आने वाला पानी बदबूदार, रंगदार और गलीज है, जो कई बीमारियां जैसे यरकान, हेपेटाइटिस सी और दूसरी मैदे की बीमारियां यहाँ पर फैला रहा है, मगर सेहत की कोई बुनियादी सहूलतें यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज हम आपको दिखाएंगे इन लोगों से बात करके कि उनको किन किन मसाइल का सामना है और वो कैसे जिंदगी के इन मसाइल से नबर्द आजमा है। सानू को 30 तो 35 साल हो गए इत्थे रहंदे नूं। ਸਾਡੇ ਖਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਗੈਸ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਗੈਸ ਮੰਗਣ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੁੜ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, हर शय खान पीन वाली महंगी। असी किधर जाइए? जेड़े बड़े अमीर आदमी ने, MP MN ने, वो खाली जगह वेख के तो कब्जा मारी जा रहे हैं, आपे फार्म हाउस बनाई जा रहे हैं, अपने प्लाट बना के बेची जा रहे हैं। कोई गरीब बंदे नूं कोई मकान, कोई जगह खाली रहन वास्ते मिल जावे तो असी थोड़े मेहरबानी शुक्रगुजार होवांगे। जेड़ा है इमरान खान साहब, इन्हें भी तो सारा कुछ फुटबॉल खेडदा है, क्रिकेट खेडदा है, क्रिकेट खेड के ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਨੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇਗੇ। ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇਗੇ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਭਿੱਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਾਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ रोटी खाते पियाँगे। सर मैं एक जगलर हूँ जो मदारी वगैरह करके अपने बाल बच्चों का और घर का किचन चलाता हूँ। करीबन अरसा 15 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। इससे पहले मैं फैक्ट्री वगैरह में जॉब वगैरह करता था, उससे हमारे घर के ये खर्चे नहीं चलते। अब आपके खर्चे जो हैं वो चल रहे हैं? अल्लाह पाक जी बहुत बड़ा कादर है, वो इंसान को उसी की सोच से ज़्यादा रिज़्क देता है।
यहाँ पर जो पानी है जिसको हमने देखा है कि उसका जायका भी चखा है, वो कड़वा है और बदबूदार है, रंगदार है, ना यहाँ पर रिहाइश की सहूलियात है, ना यहाँ पर खुराक और सफाई का इंतजाम है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले सर ये देखो पानी का मसला इधर रावी पे है। हम इस रावी के किनारे रहते हैं, इसका रावी का पानी बहुत ख़राब है जो सेहत के लिए मुज़र है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर हमारे के लिए और लोगों के लिए ये पानी का कोई अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छे वो वाटर प्लांट लाने चाहिए जिससे राहगीर और हमारी सेहत महफूज रह सके। पानी पीना अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा आपकी तरफ नहीं आया? सर किसी ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। देखो मुख्तलिफ नलके लगे हुए हैं जिनका पानी ख़राब है, जिसके पीने से अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। हम भी कभी कभार बीमार हो जाते हैं, ये पानी पीने से सेहत हमारी ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, फिर सही होते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह यहाँ पे दर्जनों बच्चे जो है वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या इनकी तालीम का कोई इंतज़ाम किया गया हुकूमत की तरफ से? देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें ये कोई उन्होंने कोई चीज़ मुयस्सर नहीं की। उनको चाहिए कि हमारे साथ तावन करे। जो भी इधर झोपड़ी बास रहते हैं उनके लिए अलहदा बच्चों के लिए यहाँ कोई स्कूल बनाना चाहिए जिससे इनका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। तो यहाँ के इस हल्के का MNA कौन है? सर इधर हमारे जो डॉक्टर हैं राशिदा, वो हमारे इस इलाके की हैं। उनको चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा सोचें और कोई स्कूल का इंतज़ाम बनाना चाहिए, चाहे किसी झोंपड़ी में बना दें ताकि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें और अच्छे इंसान बन सकें। जी, तो आपने देखा कि यहाँ रावी किनारे बसने वाले लोग बुनियादी सहूलियात से ही अभी तक महरूम हैं। ना तो उनके पास अपने बच्चों को बाज़ाब्ता तालीम देने के लिए कोई इंतज़ाम है और ना ही उनके पास सेहत और रोज़गार की सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर शदीद सर्दी में वो एक झोंपड़ी के अंदर गुजारा करते हैं, जबकि यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं। हल्के के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि रावी किनारे बसने वाले इन कच्ची बस्तियों में लोगों को प्रॉपर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दी जाएँ और इनका ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन शाहिद मुनीर के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।